Hi everybody, I am Dr. S.K. Sinha with my 10th lecture video related to photogeology, remote sensing and GIS. And overall this is 32nd video, educational video. So today we will discuss a remote sensing system. तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या है कि ये सिस्टम इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज और एक्टिविटीज which interact for a common purpose. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार. So car has a, you can say it is a system. There are so many components. Wheel is there, engine is there, steering is there, brake is there. But the common purpose is just to provide transportation. Similarly, remote sensing systems means all the components of remote sensing. It is known as system. So the purpose of remote sensing is to obtain information about the earth's surface from the remote distance, no doubt. तो ये रिमोट सेंसिंग सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे. तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम दिस कंप्राइजेस स्पेस सेगमेंट, सेंसर सिस्टम एंड ग्राउंड सेगमेंट. मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं: स्पेस सेगमेंट, सेंसर सिस्टम एंड ग्राउंड सेगमेंट. अब स्पेस सेगमेंट, व्हाट इज अ स्पेस सेगमेंट? स्पेस सेगमेंट मींस सैटेलाइट. So satellite is also known as platform. So if we talk about the satellite, it means it is artificial satellite. There are natural satellites also, but in terms of remote sensing, it is artificial satellite. So artificial satellites are also known as platform, क्योंकि सेंसर जो है उसी के ऊपर माउंटेड होते हैं. तो since the sensors are mounted on the aircraft, so it is also known as platform. So in general there are basically 3 types of satellites. One is remote sensing satellite, जिससे हम लोग अभी related भी हैं. We are discussing about the remote sensing. So one is remote sensing satellite. लेकिन 2 और तरह के satellites होते हैं, we must know. दूसरा जो satellite होता है that is called communication satellites. So first is remote sensing satellite, second one is communication satellite, and the third is GPS satellite. तो difference क्या है? We will discuss it. Remote sensing satellites such as IRS-1A, 1B, 1C, 1D, IRS-P3, IRS-P4, Cartosat, CSAT. So many examples are there. So these are all remote sensing satellites launched by ISRO. Indian satellites है ये जो जितने भी ऊपर में नाम है, they are all remote sensing satellites, Indian remote sensing satellite. दूसरा एग्जाम्पल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का है, वो है लैंडसेट. लैंडसेट का फुल फॉर्म हो गया लैंड स्पेस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी. तो ये यूएस का सैटेलाइट है. इसके बाद एक और सैटेलाइट जैसे स्पॉट है, स्पॉट ये भी एब्रिविएशन है. इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक प्रोबेटोयर डी ऑब्जर्वेशन डी लैटेरा. सो इट्स अ फ्रेंच टर्म. सो दिस इज फ्रेंच सैटेलाइट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. We will discuss communication satellite and GPS satellite also. Now come, ये जो remote sensing satellites है, it always revolves around the sun. Around the earth. So if this is earth, so this is the path of the satellite. It is moving like this. और ये जो है सो north to south इसका है. जो मूवमेंट है इसका, जो रिवॉल्यूशन है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इट इज नोन एज डिसेंडिंग नोड. और ये जो पाथ है इसका,
दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उसके जो ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, बट इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इट इज ट्राइड दैट द orbit is almost circular, but it is not always possible to make the orbit exactly circular. So it is elliptical in shape. और ये जो maximum distance है ऑर्बिट का फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एपोजी, और जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पेरिजी। And the inclination of the orbit it is measured with reference to the equator. तो ये इक्वेटर अगर है, ये अर्थ का आगे इक्वेटर है, तो ये जो ऑर्बिट का इंक्लिनेशन है इसी से हम लोग मेजर करेंगे। और सैटेलाइट्स को पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड। और ये जो ऑर्बिटल पीरियड है इट वेरीज फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट्स। अलग अलग सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिटल पीरियड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जनरली ये मिनट्स में होते हैं, सर्टेन मिनट्स। जैसे कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे IRS का 1A, 1B, 1C, ये 3 सैटेलाइट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है इट इज 103.2 मिनट्स। तो 103.2 मिनट में ये पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। या IRS 1A, 1B, 1C की बात है। सिमिलरली लैंडसेट का भी लगभग वही है टाइमिंग, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। लैंडसेट 1, 2, 3 इन तीनों का जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज 103.3 मिनट्स, जस्ट 0.1 मिनट का डिफरेंस है। इसके बाद स्पॉट है फ्रेंच सैटेलाइट, तो ये जो स्पॉट है इसका है 101 मिनट। कार्टोसेट अगेन, कार्टोसेट ये जो IRS वाला है सीरीज कार्टोसेट, इसरो का ये है, तो कार्टोसेट का जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज 97.1 मिनट। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, तो दिस इज ऑर्बिटल पीरियड। अब एक चीज और है कि ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं दे आर लॉन्च्ड एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 लेस देन 1000 किलोमीटर, 700 से 900 किलोमीटर ये सफर है, ये इसी के बीच में सारे लगभग आ जाते हैं। तो ऑल्टीट्यूड जो है रिमोट सेंसिंग का जो ऑल्टीट्यूड है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 रादर लेस देन 1000 किलोमीटर। And secondly, remote sensing satellites are sun-synchronous satellites. So the orbit of the remote sensing satellites are sun-synchronous. Sun-synchronous orbit is also known as polar orbiting. तो इसका मतलब क्या हुआ? sun-synchronous का मतलब हुआ कि जो ऑर्बिट्स हैं अराउंड द अर्थ, ये जो है ये सन सिंक्रोनस में क्या होगा कि कोई भी एक प्लेस है उसको सेम जो टाइम है लोकल टाइम उसी पे विजिट करेगा। इट मींस कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया के साथ वो जो सैटेलाइट का रिलेशन है ये विथ रेफरेंस टू द सन वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए सैटेलाइट क्रॉसेस एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, से फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो अगर मान लीजिए 10:30 में अगर दिल्ली से के ऊपर से क्रॉस कर रहा है तो जब भी विजिट होगा अगेन उस सैटेलाइट का तो टाइमिंग वही होगा, 10:30 में ही होगा। सपोज मान लीजिए वी आर इन हजारीबाग, तो हजारीबाग में मान लीजिए 10:40 में अगर क्रॉस कर रहा है तो जब भी यहां से अगेन क्रॉस करेगा द सेम सैटेलाइट द टाइमिंग विल बी द सेम। तो दिस इज कॉल्ड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ऑर्बिट उसका कैसा है? सन सिंक्रोनस, इट इज आल्सो नोन एज पोलर ऑर्बिटिंग। और एक चीज और है, जब ये सैटेलाइट्स जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो अर्थ इज आल्सो नॉट स्टैटिक, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो जो भी समय लगा, सब से फॉर एग्जांपल 103 मिनट्स, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कितना है 103.2 मिनट्स।
तो 103 मिनट्स ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जब लगेगा, तो बट नेचुरल जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम जाएगा। तो इसका मतलब कि एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद सेम प्लेस को वो विजिट नहीं कर पाएगा, और जो टोटल शिफ्ट होता है, जितना डिफरेंस होता है, और ये जनरली मेजर करते हैं हम लोग इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पर जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। तो शिफ्ट का कारण यही है कि एक तो है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो इट विल रिजल्ट इन सर्टेन शिफ्ट। सो इन केस ऑफ Indian remote sensing satellite, the shift is 2872 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सीरीज वाले जितने हैं, इस केस में जो शिफ्ट का वैल्यू है दैट इज 2872 किलोमीटर एट द इक्वेटर। यानी अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट अगर एक बार ईस्टर्न कोस्ट से अगर क्रॉस किया है, तो एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अर्थ जो घूमता है लगभग वेस्टर्न कोस्ट आएगा। तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच का लगभग दिस इज द डिस्टेंस, सो दिस इज शिफ्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ चूंकि अपने एक्सिस पे घूम रहा है और सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो ए टाइम विल कम कि सेम प्लेस को सैटेलाइट विजिट करेगा, and that is called repeativity period. It is also known as temporal resolution. So repeativity period is the time taken by the satellite to revisit the same place. और अलग अलग सैटेलाइट्स का अलग अलग रिपीटिविटी पीरियड है। जैसे लैंडसेट 4, 5 एंड 7 का 16 डेज है, यानी कि लैंडसेट सीरीज 4, 5 एंड 6, 7 अगर है तो ये 16 डेज पर सेम प्लेस को विजिट करेगा। सिमिलरली स्पॉट अगर है, स्पॉट का जो सैटेलाइट है तो उसका जो रिपीटिविटी पीरियड है और टेम्पोरल रिजोल्यूशन है दैट इज 26 डेज। तो 26 डेज में स्पॉट का जो सैटेलाइट है सेम प्लेस पे रिविजिट करेगा। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जहां तक बात है, IRS 1A एंड 1B इसका 22 डेज है। तो इस तरह से जो रिपीटिविटी पीरियड है और टेम्पोरल रेजोल्यूशन है इट वेरीज फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट। तो दिस इज अबाउट द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। लेकिन थोड़ा दो हम लोगों को जानना चाहिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भी थोड़ा मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जनरली वेदर फोरकास्ट वगैरह के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं इनसेट 1 एंड इनसेट 2। अब इसका नाम चेंज हुआ है, नाउ इट इज नोन एज कल्पना 1 एंड कल्पना 2 इन द ऑनर ऑफ स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला। सो नाउ इनसेट 1 and इनसेट 2 आर नोन एज कल्पना 1 एंड कल्पना 2 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है कि ऑल्टीट्यूड का बहुत डिफरेंस है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अप्रॉक्सीमेटली एट 1000 किलोमीटर, जबकि ये जो है इसका ऑल्टीट्यूड बहुत अधिक है, 36,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर ये लॉन्च होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दूसरा चीज जो है वो है इसके ऑर्बिट्स। तो इसका जो ऑर्बिट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट हैं दे आर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं इसका। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट मींस इट सिंक्रोनाइजेस विद द रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के मूवमेंट के साथ ये सिंक्रोनाइज करता है अपने को। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इट ऑलवेज लुक्स द सेम एरिया, क्योंकि उसके साथ ये सिंक्रोनाइज कर रहा था। जैसे जैसे घूम रहा है नेचुरली वो भी घूम रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी घूम रहा है। सो दिस इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो थर्ड टाइप का है दैट इज कॉल्ड GPS सैटेलाइट्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो GPS सैटेलाइट है दैट इज नोन एज नेविस्टार। नेविस्टार इज फर्दर एब्रिविएशन नेविगेशन
NAV nav, सैटेलाइट S हो गया सैटेलाइट, टाइमिंग T हो गया, एंड रेंजिंग. सो नाविस्टार इज नथिंग बट नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग. अब ये जो जीपीएस सैटेलाइट नाविस्टार है विच इज ओन्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वो कॉन्फ़िगरेशन है 21 to 24 सैटेलाइट्स का. So Navistar is a configuration of 20 to 24 satellites which provide highly accurate worldwide positioning and navigation information. तो जीपीएस सैटेलाइट्स ये जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, एंड इट इज फॉर्चुनेटली इट इज फ्री. अभी कोई हमको लोगों को चार्ज नहीं देना पड़ता इसके लिए. लेकिन देयर आर अदर जीपीएस सैटेलाइट्स ऑल्सो. जैसे कौन कौन से हैं? एक है चाइना का बीडीयू बीडीएस, ये जीपीएस सैटेलाइट है, चाइना का है. गैलीलियो यूरोप का है. ग्लोनास जो है वो रसिया का है. और इंडिया का IRNSS. तो दीज आर अदर जीपीएस सैटेलाइट्स विच आर ओन्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज. तो ये हुआ. अब जो दूसरा कंपोनेंट रिमोट सेंसिंग का हमने यहां पर बताया था, सेंसर सिस्टम. सो व्हाट इज सेंसर? सो सेंसर इज वर्चुअली अ डिवाइस दैट गैदर्स एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो जो भी रेडिएशन है, जनरली सोलर रेडिएशन को भी हम लोग यूज करते हैं. समटाइम्स जो सेंसर्स हैं उसका अपना रेडिएशन भी होता है. तो एनीवे जो भी रिफ्लेक्ट होता है एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो सेंसर क्या करता है? पहले उसको कैप्चर करता है, रिसीव करता है, कन्वर्ट्स इट इनटू सिग्नल, उसको एक सुटेबल फॉर्म में सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है, और फिर क्या करता है? उस सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन में भेजता है. ग्राउंड स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर बहुत सारा काम होता है. तो सेंसर का काम सिर्फ ये है जस्ट टू रिसीव द सिग्नल or you can say radiation which are reflected back from the earth surface, और उसको क्या करता है कि कन्वर्ट करता है सुटेबल फॉर्म में, जनरली डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, और फिर सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन में भेजता है. तो ये जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कैमरा इज अ टाइप ऑफ सेंसर यू कैन सी. सो कैमरा जो है एक तरह का सेंसर है जो कि इट ऑपरेट्स ओनली इन विजिबल रेंज. तो विजिबल रेंज में ही कैमरा यूजुअली ऑपरेट होता है. एंड दिस सेंसर इज आल्सो नोन एज स्कैनर. तो ये जो स्कैनर है ये इट सेंस द ऑब्जेक्ट्स इन द लेवल ऑफ ग्रे. जैसे मान लीजिए कि हर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिविटी अलग है, रिफ्लेक्ट करने का जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है. इसलिए ये जो स्कैनर है या जो सेंसर है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेवल ऑफ ग्रे में ये कन्वर्ट करता है. लेवल ऑफ ग्रे का मतलब जैसे एक ब्लैक हो सकता है, ब्लैक, और दूसरी तरफ एक व्हाइट एंड हो सकता है. तो इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट देयर मे बी सो मेनी लेवल्स ऑफ ग्रे. और ये जो ग्रे लेवल है, तो ये जो डिफरेंट ग्रे लेवल है उसको डिजिटल फॉर्म में, मतलब हर लेवल ग्रे का एक डिजिटल वैल्यू देता है. तो ये स्कैनर का ये काम है कि हर ऑब्जेक्ट को वो सेंस करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रे लेवल, और उसको एक डिजिटल नंबर डीएनस वो होता है, वो उसको असाइन करता है. तो इस तरह से डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकम इजियर. तो इस सेंसर का ये काम है. अब जो सेंसर है कई टाइप्स के हो सकते हैं. तो एक सेंसर वो हो सकता है विच ऑपरेट इन द OIR, ऑप्टिकल इंफ्रारेड, यानी कि विजिबल रेंज भी है और IR रेंज भी है, ये दोनों. तो एक तो ये सेंसर हो सकता है जो कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड रेंज में ये ऑपरेट हो. सेकेंड टाइप ऑफ सेंसर इज MW रीजन, माइक्रोवेव रीजन. सो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इज
a bit specialized branch of remote sensing. We will discuss it later on. तो ये बेसिकली दो तरह का पहले सेंसर हुआ. वन इज those sensor which operate in OIR region and second which operates in MW यानी माइक्रोवेव रीजन में. नाउ सेंसर्स में भी एक्टिव और पैसिव. तो एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं कि एक्टिव सेंसर के पास अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. इट डजंट डिपेंड अपॉन द सोलर रेडिएशन. सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेंसर. पैसिव सेंसर डज नॉट हैव एनी ओन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट डिपेंड्स अपॉन सोलर एनर्जी. तो इस तरह से दो सेंसर ये हो गया, एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर. अगेन सेंसर्स में भी डिवाइडेड इनटू इमेजिंग एंड नॉन इमेजिंग. इमेजिंग सेंसर क्या हुआ कि इमेजिंग सेंसर में कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलेगा. होता क्या है कि जैसे ग्राउंड है तो इट कैन बी कंसीडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स और ग्रिड यू कैन से. और इसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल्स. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल्स. तो ये सेंसर करता क्या है कि ये जो डिफरेंट स्मॉल ग्रिड्स हैं छोटे छोटे, वहां से जो रिफ्लेक्शन है, जो रिटर्न होता है रेडिएशन, उसको इंटीग्रेट करता है. तो रेडिएशंस फ्रॉम ईच यूनिट एरिया आर कलेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड. और इसमें वही ब्राइटनेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, जैसे ये ग्रिड है, ये सब डिफरेंट ग्रिड्स हैं, तो इसमें सबका जो रिफ्लेक्टिविटी है इट में डिफर, और उसको हम लोग ब्राइटनेस वैल्यू बोलेंगे. ब्राइटनेस वैल्यू. और ये जो अलग अलग ब्राइटनेस वैल्यू है उसके लिए अलग से उसका एक नंबर असाइन होगा. दैट इज कॉल्ड डिजिटल नंबर. डिजिटल नंबर. तो इमेजिंग सेंसर में क्या होता है कि ये बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में आता है, और डिफरेंट जो सेल्स हैं उसका जो रेडिएशंस हैं दे आर इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेट होकर के उसको असाइन करता है अलग अलग डिजिटल नंबर ब्राइटनेस वैल्यू के हिसाब से. तो दिस इज इमेजिंग. नॉन इमेजिंग में इसको कहते हैं रेडियोमीटर. और ये आपका जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, माइक्रोवेव वाला, तो उसमें ये यूज होता है रेडियोमीटर. तो इन नॉन इमेजिंग सेंसर व्हाट हैपेंस, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ईएम रेडिएशन. और इसमें प्रोफाइल लाइक रिकॉर्ड मिलेगा डिस्टेंस के हिसाब से, एज पर डिस्टेंस एंड रेडिएशन वैल्यूज. तो इसमें बिल्कुल पिक्चर आपको मिलेगा, एक फोटोग्राफ मिलेगा, इमेज मिलेगा. जबकि नॉन इमेजिंग सेंसर में ये डेटा है ये सर्टेन प्रोफाइल जस्ट रिकॉर्ड होगा. सो दिस इज सेंसर. नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज ग्राउंड सेगमेंट. सो ग्राउंड सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग का. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एंड ग्राउंड सेगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग द सैटेलाइट्स. तो सैटेलाइट को मॉनिटर करने का, कंट्रोल करने का और ट्रैक करने का ये ग्राउंड सेगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है. दूसरा चीज ये होता है कि इट ऑल्सो रिसीव्स द सिग्नल, प्रोसेस देम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू वेरियस यूजर्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. तो अर्लियर आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेंसर्स क्या करते हैं कि जो रेडिएशंस है उसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सिग्नल को, एंड द सिग्नल इज सेंट टू द ग्राउंड स्टेशन. तो ये ग्राउंड सेगमेंट या ग्राउंड स्टेशन पे वो क्या होता है कि यहाँ पर प्रोसेस होता है, जो सिग्नल है वो प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिफरेंट जो वेरियस यूजर्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट्स में, इट में भी डिजिटल और इट में भी हार्ड कॉपी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या हार्ड कॉपी भी हैं,
तो इट समटाइम्स इट रिक्वायर्स सर्टेन करेक्शंस। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज अ वेरी स्किल्ड टेक्निक। तो उसमें जो है ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसका करेक्शन किया जाता है। डिफरेंट टाइप के करेक्शंस आर देयर, ज्योमेट्रिक करेक्शन इज देयर, रेडियोमेट्रिक करेक्शन इज देयर, एटमॉस्फेरिक करेक्शन इज देयर। तो ये सब करेक्शंस का काम भी ग्राउंड सेगमेंट में ही होता है। नाउ देयर आर फोर मेजर एलिमेंट्स, देयर आर फोर मेजर एलिमेंट्स ऑफ ग्राउंड रेजोल्यूशन ग्राउंड सेगमेंट। ये क्या है? टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यानी टीटीसी नेटवर्क, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल सेंटर, SCC। थर्ड वन इज डेटा रिसेप्शन सिस्टम एंड फोर्थ वन इज डेटा प्रोडक्ट सिस्टम। तो ग्राउंड सेगमेंट्स में अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और अल्टीमेटली जो डेटा है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो यही होता है। तो ये जो टीटीसी नेटवर्क है, टीटीसी नेटवर्क फर्स्ट वाला जो टीटीसी नेटवर्क है, ये स्पेस क्राफ्ट मतलब इट कंट्रोल्स स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशंस। तो टीटीसी नेटवर्क इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन, कंट्रोल ऑपरेशन। और इसरो ने टीटीसी नेटवर्क पूरे कंट्री में अच्छे से किया है, और हमारे पास कंप्लीट सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम। वी हैव सैटेलाइट्स लॉन्चिंग कैपेबिलिटी, वी हैव सेंसर्स, वी आर डेवलपिंग सेंसर्स। हम लोगों के पास ग्राउंड सेगमेंट्स हैं, एफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है। तो ये टीटीसी हुआ। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड SCC। दिस वन स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर। तो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर ये जो है इट कंट्रोल्स और मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द सैटेलाइट, ट्रैक भी करता है और उसका जो कंडीशन है, हेल्थ है, उसको ये मॉनिटर करता है। और बाकी ये दो सिस्टम है, डेटा रिसेप्शन और डेटा प्रोडक्ट्स, तो ये यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो सिग्नल्स हैं वहीं पर प्रोसेस होते हैं और प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो हैदराबाद के पास, नियर हैदराबाद, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शादनगर। तो इसरो का शादनगर में बहुत अच्छा ग्राउंड स्टेशन है। स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीनाज आर देयर। वहीं पर शादनगर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद सिटी। हैदराबाद से 65 किलोमीटर पे ये शादनगर है, जहां पर NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये जो NRSC है, देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, और इट इज हार्ड कॉपी, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो द डेटा इज अवेलेबल एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। यूजर्स इसको परचेज कर सकते हैं फ्रॉम NRSC। सो दिस इज द end of this today lecture. In the next lecture we will discuss on the
sensors. What is the mode of sensing? What are different type of resolution of sensor? So thank you very much.